You can see my screen, right? Yeah. Okay. So I gave you some programs last time. Yes. So have you done all, or which one is pending? Uh, Sir, actually, I have a question. Mhm. I have a doubt in this. Find LCM of two numbers and HCF of two numbers. I'm not getting the logic of here. Find LCM and of two numbers. Yes, sir. So this is one logic. If you remember in our 8th or 10th class, how we used to take LCM, right, of two number. The lowest number in which we can divide by both, which can be Yes, divided yes, by both, right? yes, Then we used to divide by first 2, then 3, then 5, then 7, like that, right? yes. The same logic need to implement actually. But how we can how we can put that smallest number and all these numbers in in the code. So for that we need to go for a short trick actually. Okay. Yeah. So short trick I will also check for that one. Okay. Then I will explain. Okay, sir. Yeah. And LCM and one, GCD, right? yeah, LCM and HCF. SCF. Okay. I will send you the link for the solution also, and I will explain. Okay. Yes, sir. Okay. And one more question about that mm, this input number is neon number. Input number is new number. Uh, Okay. yeah. Okay. Sure. I will note down all three. Input number is okay. 1 second. LCM, SCF, and neon number. Okay. one more Apart. thing. Hmm. Yeah. So for the wait a second. Yeah. So when we swap the value, so there is two method we can swap by define a particular value in just like in X and Y, and one is we store value in temporary files. X and Y. Which question you are talking about? Yeah, swapping the value. Swapping Swapping two the value. numbers. Swapping. Yeah. Okay. Okay. Mm-hmm. Swapping the two numbers. Okay. For Mm-hmm. Actually, we swap. need that temporary variable for that to store the first variable value, and then using that temporary variable, we just store the value in the another variable. There are two ways to do it. Yeah. Using third variable Yeah. and without using third variable. Which one you tried with the third variable, right? Yeah. Right. Okay. What was your logic? So simply define a simple value. X and Y. Okay. Yeah. Then make temp value. Yeah. Okay. Temp is equal to X. Right? X is equal to Y. Y is equal to temp. This one. Yeah. This one. So what is the issue in this one? Yeah. Issue is मेरे को बेसिकली जानना है कि टेम्परेरी जो ये टेम्प यूज कर रहे हैं अभी, Mm-hmm. इसके मतलब पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया हुआ है या फिर मतलब कुछ अलग से भी यूज कर सकते हैं इसके लिए? मेथड सिंगल है या फिर अलग से भी कोई मेथड है इसके लिए? किसी के अंदर जैसे वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफाइन की हुई है, उसको टेम्प के अंदर मतलब डाल दिया, देन Hmm. फिर उसको मूव किया वाई के Hmm. लिए,
तो यही Y एक मेथड या स्वैप करने का एक दूसरा मेथड भी है विदाउट थर्ड हाँ, हाँ, वेरिएबल। या तो तो जैसे ये x मतलब x एंड y है, हम्म, सो x प्लस y ये है एक thing like that. Plus y x x minus y. X equals to, yeah. These are very old program. We don't write these programs nowadays. या स्टार्टिंग फेज सिंपल है बस, Yeah. ये y इक्वल टू x माइनस वाई, फिर नीचे लिख दो x इक्वल टू x माइनस वाई, X is equal to नीचे लिख x. दो x इक्वल टू x माइनस वाई। Uh, ये बहुत हमारे बेसिक, जब हम 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे थे तब इंटरव्यू में पूछा जाते थे क्वेश्चन। ओके ठीक है। ठीक है, इसको मेथड को मैं एक बार ट्राई कर लूंगा इसको। ओके और एक और ट्राई करना है तो इसमें x इक्वल टू x इंटू वाई, फिर y इक्वल टू x डिवाइड X बाय y, divided by, और yes. x इक्वल टू x डिवाइड बाय y। Yeah. Yes, yes. ओके ओके एक्चुअली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बट ये जो ये तरीके बताओगे तो बहुत कॉमन है। ये वाले तरीके इंटरव्यू में अच्छे रहते हैं। ठीक है। ओके ओके, और कोई प्रॉब्लम आया था? नहीं मतलब ऊपर के 4-5 प्रोग्राम किए थे, उसके बाद के अभी किए नहीं। एलसीएम से ऊपर के जितने भी थे ना वो यूज लूप वाले नहीं किए थे क्या? प्राइम उसके नंबर्स आगे अभी कर रहा और लूप वाले हूँ। प्राइम नंबर्स, लीप ईयर और ये ये कर लिया एमस्ट्रॉन्ग सर। कर लिए? ओके हाँ ओके। फैक्टोरियल, हाँ, फैक्टोरियल भी हो गया। फिबोनाची सीरीज ये नहीं किया सर, ये फेबोनेकी और एक ये आर्मस्ट्रॉन्ग में भी थोड़ा डाउट था मेरे को, इसका ओके, भी लॉजिक समझ में नहीं आया था। ठीक है। तो ये मैं सारे नोट कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये बचे हुए सारे प्रोग्राम्स कर लेंगे। ठीक है। यस सर। ओके तो तुम्हारे बेसिक प्रोग्राम्स हो जाएंगे, मतलब 1-2 साल के इंटरव्यू के क्वेश्चन में मोस्टली यही प्रोग्राम्स पूछते हैं। ओके सर। हाँ, इनसे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं कि कैसे लूप चलता है, कैसे वेरिएबल डिफाइन होते हैं, कैसे वैल्यू डिफाइन होती है और कैसे रीडिफाइन होती है। बाकी बाकी कैसे उनको मल्टीप्लिकेशन, बाकी ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं कोडिंग में, सबको सब डिफाइन हो जाता है इससे। ओके यस सर। ओके, so we will see now what is a class and object. So class vertically is a prototype. Okay, just see in Java में क्या होता है कि हम सारे चीजें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं होती, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। So Java follows object oriented. Object oriented means जो भी हम डिफाइन करेंगे, जो भी हम चीजें डिफाइन करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक हम क्लास लेते हैं, स्टूडेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका नाम होगा, राइट, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका एड्रेस होगा और उसका क्या होगा, कौन से स्टैंडर्ड में है, राइट। तो हम उसके क्लास के अंदर उसके प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसके साथ बिहेवियर भी डिफाइन करते हैं। बिहेवियर में स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट विल रीड, will write,
will give speech. ओके, तो मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या क्या बिहेवियर, क्या क्या बिहेव करेगा, क्या उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि कैसे वो परफॉर्म करेगा, क्या वो एक्शंस परफॉर्म करेगा, वो सब हम एक प्रोटोटाइप में डिफाइन करते हैं। तो उस प्रोटोटाइप को हम बोलते हैं क्लास। तो जो भी उस स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो भी उसके डेटा होगा, जो भी उसका मेथड्स होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, उसको हम एक क्लास में डिफाइन करते हैं। तो फिर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, राइट, तो हम एक स्टूडेंट क्रिएट कर देंगे, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, जो ये मैंने ये लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि पहला पहला डिफाइन करता है प्रोटोटाइप का, क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास जो हमने क्रिएट की है, ये एक क्लास लोडर होता है जेबीएम में, उससे लोड होती है क्लास मेथड एरिया में। तो इसको कोई मेमोरी नहीं मिलती, ये जस्ट एक प्रोटोटाइप टाइप है और लिखा हुआ है बाइट कोड में, एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है। और जैसे ही हमने न्यू कीवर्ड यूज किया और उसका क्लास का प्रोटोटाइप का नाम यूज किया ऐसे, तो अब इसको एक मेमोरी लोकेशन मिल जाएगा। जैसे अगर जेबीएम में मेमोरी होती है, राइट, मैंने बोला था ये मेमोरी डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स को जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है। और जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको भी मेमोरी मिली है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, मेमोरी को फ्री कर देता है। तो जैसे ही हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं, ये इसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो हर मेमोरी की एक लोकेशन होती है जिसको आइडेंटिफाई करते हैं हम उसकी मेमोरी लोकेशन से, कि कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट। इन और जावा में मेमोरी लोकेशन के अलावा एक हैश कोड भी होता है, जो जो डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करने का काम आता है ये, टू आइडेंटिफाई। ओके, कि हमने जो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, दो स्टूडेंट क्रिएट किए हैं, उनका डेटा सेम तो नहीं है, उन डुप्लीकेट तो नहीं है। बाद में बताऊंगा मैं कि कैसे ही चेक करता है कि डुप्लीकेट नहीं है, कहाँ पे इस हैश कोड का यूज होता है। बस हैश कोड इसकी एक आइडेंटिटी हो गई जिसको जेबीएम अंडरस्टैंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट की ये आईडी है। एनी डाउट सो फार? सर No, जो no. ये बिहेवियर होगा स्टूडेंट का वो भी क्लास के अंदर ही आएगा? यस यस। ओके। तो जैसे मैंने अभी तो बस डिफाइन किया कि उसको ये मेमोरी मिल जाएगी और उसका बिहेवियर हो जाएगा। ओके, बाद में यस मैंने सर। उसका एस डॉट नेम कर दिया, ये कर दिया। तो जो मैंने स्टूडेंट बनाया है, जो मैंने स्टूडेंट क्रिएट किया, उसका नाम क्या हो गया? राज। ओके। ओके, अब मैंने जब एस डॉट किया रीड लाइक दिस, मैंने उसका बिहेवियर कॉल किया, तो अब इसको जो भी रीड फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब राज नाम का स्टूडेंट अभी रीड कर रहा है। ओके क्लियर? सर। यस सर। तो जावा में जो भी कुछ होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म होंगे, जो भी डेटा होगा, वो सब क्लास के अंदर होगा। इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। नॉट 100%, बट मोस्टली इट फॉलोज द ऑल द ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड concepts. So later when we will studying, right, so we will also study inheritance, polymorphism, overloading, function overloading, method overloading, all those concepts. First step is class. What is a class and what is an object? Okay, so let's see it practically how we create a class. Go to Java class, student, क्लास क्रिएट हो गई। ओके, मैंने उसका दिया string name, string dov, string उसका स्टैंडर्ड। फिर मैंने उसका मेथड बनाया,
इसमें थोड़ा प्रिंट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा लिखना पड़ता है इसमें स्टेटमेंट। उसका एक शॉर्टकट है Actually, in C programming, it's only printf. printf, yes, and C++ C out only. Yes. तो इसमें इसका थोड़ा एक बड़ा हो शॉर्ट जाता है ये। इसका एक शॉर्टकट है SYSO लिखो एंड कंट्रोल स्पेस करो। ये इसमें काम नहीं करता है, उसमें बनाने पड़ते हैं। शॉर्टकट्स बना सकते हो। ओके। ये मेरी आईडी नहीं है तो इसमें नहीं है बना शॉर्टकट। शॉर्टकट बना सकते हो तुम अपने। ये तुम्हारे एक्सप्लोर करने की चीजें हैं कि आईडी में क्या क्या हम कर सकते हैं। हाँ, यस सर। ओके, तो ये जो इतने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं इनके हम शॉर्टकट्स बना सकते हैं। मैंने अपनी आईडी में बनाए हुए हैं बट ये भी मेरा लैपटॉप नहीं है, इसमें बने हुए नहीं है। ओके ओके सर। ओके, मैंने उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई, उसका एक नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका कौन से स्टैंडर्ड में है वो। और मैंने उसके 2 बिहेवियर बनाए, रीड और राइट। अब इसको कैसे हम कॉल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। स्टूडेंट, देखो यहाँ पे दिखाई देगा एस स्टूडेंट एस डॉट रीड डॉट राइट। Okay, this one we can give another name. This one. देखो ये मेथड कॉल हुए। Yeah. उसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एस डॉट, उसका नाम हमने दे दिया S1 डॉट, उसका नाम मैंने यहाँ पे उसका नाम प्रिंट कर दिया। ठीक है, see 1 second, need to give one space. देखो तो उसका नाम क्या हो गया वो स्टूडेंट का, राज। से कोड दिखाया तो ये छोटे से कोड में कोई डाउट है इसमें? No. श्रेयांश, एनी डाउट? सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ये आपने एक बार वापस जाना उस पे माय फर्स्ट प्रोग्राम पे। ओके, फिर यहाँ पे आपने S1 ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ये S1। हाँ, हाँ मैंने बताया ना, ये तो उसका प्रोटोटाइप हो गया, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। तो सर जैसे ये आपने इधर स्टूडेंट लिखा तो वो उधर क्लास नेम स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे इसने इसको S1 में अपन मतलब S1 दे दिया इधर ऐसे। नहीं नहीं, इसके लिए कुछ भी दे सकते हो, ये वेरिएबल का नाम है, जैसे वेरिएबल का नाम नहीं कुछ भी दे सर, सकते हो ना। अपने को ये वहां की वैल्यूज एक्सेस तभी मिलेगी जब अपन उधर की क्लास को यहाँ मेंशन करेंगे, ऐसा ना? यस, जो भी कुछ एक्सेस होगा वो क्लास के थ्रू होगा, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। ओके ओके, और होगा वो वेरिएबल डॉट फिर जो भी अपन ने पैरामीटर्स वहां लगाए हैं उससे एक्सेस होगा। इसको वेरिएबल नहीं बोलते, वेरिएबल बोलते हैं अपन जब प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं।
मैंने बताया ना, दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव हाँ, डेटा हाँ, टाइप yes. और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो जो Yes, प्रिमिटिव yes. डेटा टाइप होते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, डबल, तब उनको वेरिएबल बोलते हैं। जब हम Yeah, yeah. यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इंस्टेंस नेम बोलते हैं। तो उसको क्या बोलोगे आप? इंस्टेंस। Okay, sir. Instance. इंस्टेंस। तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट? सो ये कहलाता है इंस्टेंस। तो S1 इज ए इंस्टेंस। Yes, sir. Okay. ओके, तो मैं इसके कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड डेटा मेंबर्स, इट विल प्रोवाइड अ मेमोरी। Yeah, yeah, sir. नेम इसका मैंने कर दिया s2 dot read, s2 dot write। see, okay, so we can create n number of objects based on the memory, how much memory we have। उससे ये न्यू क्या है सर इसमें, जैसे न्यू स्टूडेंट लिखा ना आपने इधर? हाँ, न्यू का मैं बताऊंगा अभी। इतना क्लियर है इसमें? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि न्यू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये न्यू कीवर्ड क्या है, और ये जो हमने ब्रैकेट लिखे हैं ये क्या है। ओके, यस सर। सो हमने क्लास देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन देख लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए क्या जरूरत पड़ता है? न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या करता है? जो भी हमने उसके आगे क्लास नाम लिखा है उसको JVM को बताएगा कि वी आर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट, सो इट विल असाइन ए मेमोरी। गेटिंग इट? यस सर। सो अगर हम न्यू कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसको JVM को पता नहीं लगेगा कि इसको मेमोरी एलोकेट करनी है या इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। सो न्यू कीवर्ड मैंडेटरी है। ओके, तो न्यू कीवर्ड देन द नेम ऑफ द क्लास। न्यू कीवर्ड जो ये आगे लिखा है ये है कंस्ट्रक्टर। अब मैं बताऊं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जो ये ब्रैकेट में लिखा है ये होता है कंस्ट्रक्टर। ओके, ओके सर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेट मी शो यू। राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक के बाद दिखेगा आपको जनरेट। जनरेट में दिखेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आएंगे कितनी फील्ड है, वन नेम है उसके पास, डेट ऑफ बर्थ है और उसका स्टैंडर्ड है, राइट। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा, ये वाला जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमने जो ये लिखा है ये किसके सिमिलर है? इसके सिमिलर है, राइट। यस सर। ये कैसा लगता है, ये मतलब मेथड जैसा लग रहा है, राइट। रिटर्न इसका एक्सेस मॉडिफायर और उसका मेथड। मेथड मतलब? जैसे ये राइट है, ये एक मेथड हो गया ना, राइट, स्टूडेंट का। ओके ओके सर। तो ये भी एक मेथड हो गया ना, स्टूडेंट, यस सर। विदाउट एनी आर्गुमेंट। यस सर। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जिसका नाम क्लास का नाम होता है। ओके, ओके सर। बट बेसिकली ये करता है क्या है, वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के काम आता है, जो उसके डेटा मेंबर्स है, राइट।
नेम, DOB, स्टैंडर्ड, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आएगा। तो हमने कोई इसमें आर्गुमेंट पास नहीं किया अभी, राइट, ये वाले में। यस सर। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज एंड रिटर्न इंस्टेंस। अभी इसमें क्या है, हमें रिटर्न टाइप नहीं दिख रहा है, पब्लिक लिखा है बस, रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ हमने, ये हिडन होता है इसमें। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? स्टूडेंट ही होता है, जो भी क्लास का नाम है। सर रिटर्न टाइप मतलब समझा नहीं सर। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक मेथड कराया था, राइट, एडिशन का, हाँ उसमें रिटर्न कर रहे थे हम इंटीजर वैल्यू। याद है? हाँ हाँ। जैसे मैं बताता हूँ फिर से, पब्लिक स्टैटिक इंट एड इनफाइन रिटर्न x प्लस वाई। तो इसमें हम इंटीजर रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न टाइप इज इंटीजर, सो इसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर होगी, करेक्ट। ओके। जो हमने रीड और राइट फंक्शन लिखे हैं उसका रिटर्न टाइप लिखा है हमने वॉइड। यस सर। हाँ। वॉइड का मतलब होता है हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न यस सर। कीवर्ड नहीं है। यस सर। तो सिमिलरली कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर उसका रिटर्न टाइप क्लास क्लास होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। बट हम ये लिखते नहीं है, ये भी हमको पता होता है ऑलरेडी। ओके। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है एंड उसको, उसका जो इंस्टेंस है जहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस और उसकी वैल्यू सारे रिटर्न करता है, उसका रेफरेंस जो है वो रिटर्न करता है। तो पूरा जो हमने लाइन लिखा है, स्टूडेंट क्लास का नाम, देन इंस्टेंस का नाम, न्यू कीवर्ड टू allocate memory, student, and then bracket default constructor to assign default values and get the instance of that student where that student is created in the memory. Any doubt in this line? नो सर। Lucky, you have any doubt in this? No, no, no. क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये मतलब ये बेस है इसका। Mhm. इसमें जो चार चार जो लिखे हुए हैं, ये चारों चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्यों लिखे हुए हैं। Yeah. ओके, मैं उसको भी प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, मैं इसको लिख देता हूँ और मैं इसमें भी प्रिंट करा देता हूँ कि रियल में ये डिफॉल्ट वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, राइट। प्रैक्टिकली देखना चाहिए हमें। नेम इज नेम, is and standard is standard. Okay. इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ तो कुछ नहीं। देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड,
हमने यहाँ पे कहीं पे कॉल तो नहीं किया उसको? एक से सीखते हैं, पहले एक को हटा देता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, हमने यहाँ पे कहीं पे कॉल किया उसको? हाँ सर। यहाँ पे किया है राइट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड राइट। राइट। तो यहाँ पे उसके बाद उसने क्या प्रिंट किया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, फिर उसने प्रिंट किया वैल्यू नेम इज नल। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल, कोई हमने वैल्यू असाइन नहीं की। यहाँ पे असाइन वैल्यू का हमने कहाँ पे किया है? बाद में। तो ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम उसको न्यू कीवर्ड के बाद रख देते हैं तभी कॉल हो जाता है ये। कंस्ट्रक्टर कौन सी लाइन पे कॉल हुआ? लाइन नंबर 6 पे। पीओवी की वैल्यू क्या है? नल। एंड स्टैंडर्ड की वैल्यू भी क्या है? नल, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? उसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है और उसका इंस्टेंस रिटर्न करता है। तो जो भी बन के आएगा ऑब्जेक्ट, उसका मेमोरी लोकेशन, उसका रेफरेंस S1 को दे देगा कि ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में यहाँ पे क्रिएट हुआ है और इसकी ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। अब S1 को सब पता है कि उस कहाँ पे स्टोर है वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में, उसके पास क्या क्या डेटा है, उसका बिहेवियर क्या है। फिर हम जो कुछ भी हमें असाइन करना है, उससे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, हम S1 के थ्रू कराएंगे। समझ में आया ये वाली बात? तो सर इसमें बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा फिर? हाँ, जैसे मैं इसमें एक और वैल्यू डाल देता हूँ स्टूडेंट की। इसे मैंने डाल दिया स्टूडेंट के परसेंटेज डाल दिए। चलो इसको मैं ले लेता हूँ फ्लोट। फ्लोट में दे देती है मैंने उसके मार्क्स। ठीक है, एक और डेटा वेरिएबल दे दिया। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। मार्क्स और तो अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेना चाहिए बताओ? फ्लोट की इंट की 0 होती है, ऐसी फ्लोट की 0.0 समथिंग लाइक हाँ दैट। 0. यस Yeah. सर। देखो आगे ना 0.0। सर ये आप वो बाय डिफॉल्ट बता रहे थे, वो यही है क्या? बाय डिफॉल्ट वैल्यू देता है? हाँ, मैंने तो बताया था ना, सारे डेटा टाइप पढ़ना और उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी पढ़ना। यस सर। हाँ, तो यही बता रहा था मैं लास्ट टाइम। सारे सारे डेटा टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। यस सर। So that means the default constructor is giving the default value. यस, assigning the Okay. default values and returning the instance, memory location and reference to S1. So Alright, sir. new keyword telling JVM to create a new object, and constructor assigning the values, returning the instance to S1. And S1 is instance. तो ये चीजें याद कर लो। इंस्टेंस क्या होता है बता देता हूँ। व्हाट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस एंड कंस्ट्रक्टर। ये चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए जावा में आगे बढ़ने से पहले। Yes, sir. ठीक है, अभी हमने एक स्टूडेंट क्लास देख ली, अब हम देखते हैं एक और दूसरी क्लास, व्हीकल। अब तुम बताओगे कि व्हीकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे।
जैसे मैंने बनाया कि व्हीकल एक क्लास बनेगी मेरी। तुम दोनों बताओगे कि व्हीकल के क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, क्या उसके बिहेवियर होगा, क्या क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है एक व्हीकल। तो जब भी हम डिजाइन करेंगे कोई एप्लीकेशन, सबसे पहले उसके हम क्या बनाएंगे, क्लासेस। क्लासेस क्या हो गए, प्रोटोटाइप, कि उसमें क्या क्या एंटिटीज होंगी, क्या क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो जब भी हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, सबसे पहले क्लास को माइंड में सोचेंगे कि उस क्लास के में क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे और क्या क्या मेथड्स होंगे। तो पहला स्टेप हमारा कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने से पहले ये होगा, ठीक है। यस सर। तो बताओ कि व्हीकल में क्या क्या होगा। फर्स्टली व्हीकल टाइप, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। चलो 4 व्हीलर लेके चलते हैं अभी। हम्म। 4 व्हीलर का बताओ। 4 व्हीलर के लिए ब्रांड। ठीक है, आगे बताओ। देन एवरेज। ओके, मॉडल टाइप। ओके। और इंजन टाइप। इंजन यस, टाइप। इंजन टाइप, डीजल और पेट्रोल। या मैक्स स्पीड, राइट। यस सर। उसके ऑपरेशंस क्या क्या होंगे। गो फॉरवर्ड, हाँ हाँ। राइट। देखो। ऑटोमेटिक, मैनुअल। वो तो टाइप हो गया। हम्म। हो गया। ब्रेक, बेसिकली व्हीकल तीन ही चीज करता है ना, आगे या तो आगे जाएगा, हाँ पीछे जाएगा, हाँ। या फिर ब्रेक लगाएगा। हम्म। इसको कैसे बनाएंगे फिर हम। तो ये हमने सबसे पहले डिफाइन कर लिया। इसमें ना आपको हमें पहले कोडिंग का नहीं सोचना कि कोड कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले तो डिफाइन करते हैं, रियल वर्ड में सोचना है उसको, कि व्हीकल के पास क्या क्या होता है, क्या क्या हमें चाहिए, बेसिकली उसको बनाने के लिए क्या होगा, वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कोडिंग तो बाद में आएगी, क्योंकि कोड तो हम कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं बाद में, सी में कर लेंगे, C++ में कर लेंगे, जावा में कर लेंगे। डिफाइन करने के बाद हम समझ में आएगा कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। अच्छा, हमें की क्लास यूज करना है तो उस लैंग्वेज यूज करेंगे, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसलिए हम फिर उप्स की तरफ जाएंगे, C++ की यूज करेंगे, .NET यूज कर लेंगे, जावा यूज कर लेंगे, राइट। बेसिक थिंग्स है, उसको प्रोटोटाइप डिफाइन करना। तो इसको सेम राशि में जाएंगे, क्लास करेंगे, करेंगे स्ट्रिंग, अब इन सबको यहाँ पे लिख देंगे। स्ट्रिंग कैपिटल, void, go forward, reverse,
ओके ठीक है, इसको मैं कटाया से क्लियर। अब तुमको एक डाउट होना चाहिए इसमें। या अभी तक प्रिंट नहीं किया अपन ने ब्रांड और ये engine हाँ type। वो तो ठीक है, वो तो प्रिंट नहीं किया। एक डाउट होना चाहिए, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, राइट? हाँ Yes. तो इसका मतलब क्या है कि JVM ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, तो इसको हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ये बात? हाँ सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय JVM। जी। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? मैं अब इसमें वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तब समझ में आएगा। तुम्हारे जो भी डाउट हो ना जावा में, सब तुम प्रोग्राम रन करके देखना, तो तुम्हारे डाउट हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। ब्रांड इज एवरेज को मैं कर देता हूँ फ्लोट, और स्पीड को भी कर देता हूँ मैं इंटी। एवरेज मॉडल टाइप MX speed speed okay, engine type। देखो ब्रांड की वैल्यू आ गई टाटा, और इंजन टाइप आ गया मैनुअल। क्लियर हो जाए। देखो ब्रांड इज टाटा, इंजन टाइप मैनुअल, मैंने दो ही वैल्यू डिफाइन की थी, ब्रांड एंड इंजन टाइप।
बाकी वैल्यू उसने क्या ले ली, डिफॉल्ट। एवरेज मैंने क्या दिखाया था, फ्लोट, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, 0.0। मॉडल टाइप मैंने डिफाइन नहीं किया, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई नल। मैक्स स्पीड मैंने डिफाइन नहीं की, उसकी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि इंटीजर है। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो आई थिंक अब क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सब क्लियर हो गया होगा। Yeah. ओके, तो अभी मैं तुमको बताता हूँ स्विच केस। लास्ट टाइम अपना लूप हो गए थे, फोर लूप एंड वाइल लूप, राइट, इफ एल्स हो गए थे। यस सर। हाँ। ओके, अभी पढ़ते हैं स्विच केस क्या है। सर इसमें डू वाइल लूप नहीं होता क्या? डू वाइल भी होता है, बट मोस्टली हम वाइल वगैरह से कम वाइल वगैरह यूज करते हैं मोस्टली। ओके। होते हैं, कई सारे होते हैं, बट मोस्टली जितना मैंने देखा है अपने इसमें इंडस्ट्री में, वाइल और मोस्टली फोर लूप यूज करते हैं। और अभी तो For each. लूप फोर ईच भी करते हैं, बट अभी तो लूप भी खत्म हो गए हैं धीरे धीरे। अभी हाँ, हाँ। जावा 8 आ गया है, तो जावा 8 में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ट्रैवर्स करने के लिए। ओके। तो जब हम नेक्स्ट में हम जावा 8 पढ़ेंगे ना, तो उसमें एडवांस लेवल के हम ये लूप वगैरह भी पढ़ेंगे, फोर ईच से भी आगे वो पढ़ेंगे सब, स्ट्रीम एपीआईज। ओके। ये तो बस बेसिक हैं आइडिया देने के लिए, ठीक है। ठीक है। डू वाइल में भी कुछ नहीं है। डू वाइल में बस एक डिफरेंस है कि डू में ऐसी कंडीशन होती है, डू इधर होता है, जो इसके ऑपरेशंस होते हैं वो इधर होते हैं, प्रोग्राम इधर होता है, कंडीशन नीचे होती है। ओके, तो इसमें और डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल ऐसे होता है, वाइल में पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर पहले कंडीशन। कंडीशन इनिशियलाइज तो ऊपर ही हो जाता है, दोनों केस में इनिशियलाइजेशन तो ऊपर ही हो जाता है, या ठीक है। डू वाइल और वाइल में इनिशियलाइजेशन तो पहले ही हो जाता है, वाइल में कंडीशन पहले आ जाती है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो डू वाइल में क्या होता है कि प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। ओके। मतलब एक अगर कंडीशन फॉल्स भी है, मैच भी नहीं हो रही है, फिर भी एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। यस। वाइल में पहले कंडीशन पे जाएगा, फिर इधर जाएगा। Okay. स्विच केस में क्या होता है, स्विच कीवर्ड होगा, इसके अंदर एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल हो सकता है इंस्टेंस, हो सकता वेरिएबल, मोस्टली वेरिएबल होगा। इंस्टेंस का मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन से हो सकते हैं, मोस्टली रैपर क्लास होती है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर आएगा केस, केस में वैल्यू होगी, मान लो ये होगा, फिर नीचे प्रोग्राम होगा, फिर केस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक इंटीजर लिखा, इंटीजर x इक्वल टू 3, इस x को पास कर दिया मैंने यहाँ पे, स्विच x, फिर मैंने केस में वैल्यू दी 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट 1, केस 2,
print is 3 print 3 फिर होगा एक डिफॉल्ट, मतलब कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई, इसमें प्रिंट हो जाएगा डिफॉल्ट। और ये प्रिंट करने के बाद हमेशा ब्रेक यूज करना पड़ेगा ताकि पता लगे कि स्विच केस ब्रेक हो गया है। इसके बाद आगे ये बाकी की केस चेक नहीं करेगा। अगर तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये सारे आगे आगे का केस चेक करेगा, नहीं मैच हुआ फ्री 3 भी करेगा चेक, फ्री ये भी करेगा, ये भी करेगा और सारे प्रिंट कर देगा। तो ब्रेक लगाना जरूरी है सारे केस के बाद। ओके, समझ में आया सिंटैक्स क्यों यूज करते हैं? क्या सर? तो स्विच इसका केस बिहेवियर मतलब लूप के जैसे ही एक तरह से। लूप के जैसा नहीं है, ये लूप के जैसा नहीं है। लूप में तो क्या सारे बार बार चलते रहेंगे जब तक कंडीशन मैच नहीं होगी। इसमें एक ही केस रन होगा। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू else एक्स, कैसा है? हाँ एफ एल्स जैसा है। अगर 10 एफ एल्स लगा दी हमने उसकी जगह स्विच केस लगाते हैं। एक जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2 कर दी तो ये 2 वाला ही एग्जीक्यूट करेगा, बाकी के नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो तुम स्विच केस का यूज करके इनपुट लेके तुम्हें प्रिंट कराना है कि आज कौन सा डे है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो तुम्हें उसमें नंबर पास करना है कि ये जैसे एक ले लेना, मंडे के लिए पहला दिन ले लेना, ट्यूसडे के लिए सेकंड डे ले लेना, वेडनेसडे के लिए थर्ड डे ले लेना। फिर प्रिंट करा के देखना कि तुम्हारा स्विच केस काम कर रहा है कि नहीं। दो को दो पास करना, 2 पे इसको प्रिंट करना चाहिए ट्यूसडे। 3 पास करना, 3 पे इसको प्रिंट करना चाहिए वेडनेसडे। ये तुमको तुमको करके देखना है। और एक बार वो वाला भी बता देते कि यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, ओके, और वो स्कैन वाला भी बता देना सर। स्कैन वाला ओके, लेट मी नोट डाउन। there to scanner एंड, और मैं अब तुमको बताऊंगा कि आर्गुमेंट भी कैसे पास करते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये तुम्हारे नेक्स्ट क्लास के लिए होंगे। ओके सर। ओके, तो ये और आज हाँ, वाला प्रोग्राम सर बिना इनपुट के देख लें या फिर पहले अभी बिना इनपुट वाला समझा? अभी बिना इनपुट के देखो। अभी मैं तुमको आईडी से रन करके दिखा रहा हूँ प्रोग्राम, राइट? ओके सर। तो अभी तुम्हारा ये भी आएगा कि ये स्ट्रिंग एरे क्या है। हाँ सर, ये भी पूछना था स्ट्रिंग, हाँ, और ये आगे ARGS लिखते हैं ना इसमें, कुछ भी लिख दो, ये वो तो क्या? इंस्टेंस का नाम है। मोस्टली एरर्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इसका टाइप ही होना चाहिए। तो इसको बताऊंगा मैं। इसमें क्या होता है, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में जाओगे, रन कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम आर्गुमेंट्स। यस सर। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स पास करेंगे ना, वो इसको मिलेंगे आर्गुमेंट को। मतलब कैसे, एक बार पास करके बताना।
आ गया दूसरा आर्गुमेंट? यस सर। तो ये मैं बताऊंगा तुम्हें, कमांड लाइन से तुम्हें प्रोग्राम रन करना बताऊंगा। अभी हम आईडी से रन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जावा कमांड क्या होती है, एंड जावा सी कमांड क्या होती है। ओके ओके सर। तो तुमको बाकी के बचे हुए प्रोग्राम करने हैं, ये प्रोग्राम मैं तुमको आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। यस और स्विच केस का वो वाला करना है, ए वाला। यस ओके ओके सर। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।